Dear students, in the electrochemistry chapter, whatever we have finished so far, that is in our syllabus for this session. The remaining topics which are given in your NCERT book, they are not in the syllabus this year. So now we are going to study the next chapter of chemistry, that is surface chemistry. So far we have finished 3 chapters. One is solution, chemical kinetics and electrochemistry. Now this is the next chapter of chemistry, that is surface chemistry, and comparatively this is theoretical and easy chapter as compared to the previous 3 chapters, solution, kinetics and electrochemistry, because they belong to the physical chemistry based on the numericals and calculations. But this chapter is totally theoretical based, so easily you can learn and understand. So what is the meaning of surface chemistry? The definition is, it is the branch of chemistry which deals with the study of the phenomena occurring at the surfaces. It means those type of processes, those type of reactions which occur at the surfaces. The chemistry related to that is called surface chemistry. Before study in detail about the surface chemistry, we should know the meaning of adsorption and absorption. What is the difference between adsorption and absorption? The first point, you might have heard any time these two words, adsorption and absorption. So adsorption में the first point है, that is it is a surface phenomena, that is it occurs only at the surface of adsorbent. It means जैसे for example this is the surface and on this surface some gaseous molecules, they stick with this like this. So if one substance is simply sticked with the another surfaces, that is called adsorption. Adsorption means one type of substance that is only sticked on the surface, that is adsorption. Then what is the meaning of absorption? Absorption means when the one substance goes inside the bulk of the another substance. There is, for example, foam. You might have seen many times foam. When we pour water in the foam, where the water goes? Water goes inside the bulk. So that is called absorption. Absorption means when the one substance goes inside the bulk of the another substance. That is absorption. Or adsorption means one substance that remain on the surface of the another substance, that is called adsorption. So I hope it is clear to you. Second point, its rate is high in the beginning and then decreases till equilibrium is attained. And absorption में its rate remains same throughout the process. Examples are also given. Adsorption का example, water vapors on silica gel, और absorption में example, water vapors absorbed by the anhydrous calcium chloride. Anhydrous calcium chloride is a chemical substance. When water comes in contact with the anhydrous calcium chloride, this anhydrous calcium chloride, it absorbs the water. It means the water goes completely inside the bulk of the calcium chloride. And silica gel, that is also common. See this silica gel. Silica gel, what does it do? When the water comes in contact with the silica gels only adsorbs the substance. It means the water only remains on its surface. So that is the difference. Now what is the difference between adsorbate and adsorbent? This is adsorbate and this is adsorbent. What is the sense of this? Suppose this is the one substance and another substance sticks on its surface. So that substance which sticks on the surface, that is called adsorbate, and the substance at which the substance is adsorbed, that is called adsorbent. So very simple difference. Adsorbate means जो एड्जॉर्ब होता है और एड्जॉर्बेंट मीन्स जिस पर एड्जॉर्ब होता है.
तो ये जो पर्पल कलर आपको दिख रहा है दैट इज एडजॉर्बेंट, और जो चीज़ एडजॉर्ब हो रही है दैट इज ग्रीन वन, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट. सो सी द डेफिनेशन. Adsorbate, the substance adsorbed at the surface of the solid during adsorption is called adsorbate, and adsorbent, the surface on which adsorption occurs is called adsorbent. Now desorption. What is the meaning of desorption? Desorption means this is the surface, and on this surface suppose some gases they are adsorbed. So that is called adsorption. And after the adsorption, if it is possible for us to remove these gases from this surface by any method, so that is called desorption. D means removal. जैसे होता है deforestation, removal of forest. So in the same way, desorption means removal of the adsorbed substance from the another surface, that is called desorption. अब आता है sorption. What is the definition of sorption? There are some substances which adsorb as well as absorb the substances on its surface. यानी कि कुछ substances ऐसे होते हैं जो दूसरे substance को adsorb भी करते हैं और absorb भी करते हैं. तो sometime the adsorbate initially appears on the surface of the adsorbent and later passes into the body of the adsorbent. पहले adsorb होता है और उसके बाद absorb होता है. तो दैट इज कॉल्ड sorption. और इसका जो एग्जाम्पल है यू मेंशन समवेयर, नोट डाउन, डाइज गेट एडजॉर्ब एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड इन द कॉटन फाइबर्स. जब भी कॉटन फाइबर्स को कलर किया जाता है तो जो डाइज होती हैं वो पहले सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होती हैं और उसके बाद में एब्जॉर्ब होती हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ sorption. यू मेंशन समवेयर और नोट डाउन. नाउ इन दिस होल चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी adsorption, because adsorption only occurs on the surface of the another substance, and we are studying the surface chemistry. So it means in the whole chapter the main part which we will cover, that is adsorption. And adsorption is of two types. One is physisorption and the second one is chemisorption. What is the difference between the physisorption and chemisorption? तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा. physisorption means when the one substance is adsorbed on the surface of the another substance by physical attraction. जैसे physisorption, physical attraction, no chemical bonds are formed. और chemisorption में the one substance is adsorbed on the another substance by the chemical methods. So that is called chemisorption. तो पहला डिफरेंस आपका देखिए, जब physisorption होगा तो enthalpy of adsorption is usually is of the order of -20 किलोजूल पर मोल. जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है. जैसे हमने आपको शायद कभी पहले बताया हो कि वेन एवर ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू सब्सटेंसेस, ऑलवेज द एनर्जी और द एंथैल्पी इज रिलीज्ड. जब भी बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी. तो फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे दिस इज द सब्सटेंस, one substance, and the another substance is adsorbed on its surface, and when it is adsorbed, तो adsorption only takes place by some physical attraction. और physical attraction में जैसे हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, जैसे बहुत ही सिंपल टाइप के अट्रैक्शन होते हैं जिनके नाम होते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन. If you don't remember, then you can consult the 11th class book. Last year in the chapter states of matter we have studied these type of physical attraction. जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये सारे अट्रैक्शन जो होते हैं वो फिजिकल अट्रैक्शन कहते हैं. इनमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है. तो वेन एवर द वन सब्सटेंस इज एडजॉर्ब ऑन द अनदर सब्सटेंस ओनली बाय फिजिकल अट्रैक्शन, तो उसको नाम देते हैं फिजिसॉर्प्शन. और जब ये सब्सटेंस जो एडजॉर्ब हो रहा है अगर ये कोई केमिकल बॉन्ड बनाता है, जैसे मे बी द कोई भी आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, तो उसको कहते हैं केमिसॉर्प्शन. केमिसॉर्प्शन में सिंस द केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड सो दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन
फिजिकल अट्रैक्शन। जो फिजिकल अट्रैक्शन होते हैं दे आर वेरी वीक। जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, ये बहुत वीक होते हैं, बहुत ही हल्का सिंपल सा अट्रैक्शन होता है अमंग द मॉलिक्यूल्स, तो इसको नाम देते हैं फिजिजॉप्शन। तो सिंस द अट्रैक्शन इज वेरी लाइट एंड ओनली बाई फिजिकल अट्रैक्शन, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ऑल्सो वेरी लो। और जब भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -20। और केमिजॉर्प्शन सिंस इट इज ए स्ट्रॉन्ग, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, दैट इज -200। यहाँ पर हम लोग मैथ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर -20 है, यहाँ पर -200 है, तो अकॉर्डिंग टू मैथ अगर हम आपसे पूछें किसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली बताएंगे 20, क्योंकि ये -20 है और ये -200। लेकिन यहाँ पर जो माइनस साइन है, वेन एवर वी स्टडी द नेगेटिव साइन इन केस ऑफ एनर्जी और इंथैल्पी, तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पर होता है रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पर 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पर 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ आपकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये आपकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एंड सिंस द केमिकल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, सो दैट इज वाई मोर एनर्जी इज लिबरेटेड और रिलीज्ड। तो पहला पॉइंट इसका हो गया कि फिजिजॉप्शन और केमिजॉप्शन में, जो केमिजॉप्शन है उसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। फिजिजॉप्शन में सिंपल अट्रैक्शन होता है इसलिए कम एनर्जी रिलीज होती है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ द सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर हेल्ड बाय वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वैन डर वाल होता है। और केमिजॉप्शन में मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर हेल्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। थर्ड पॉइंट, it is usually takes place at low temperature and decreases with increasing the temperature। ये जो फिजिज ऑप्शन होता है ये लोअर टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये आपकी सरफेस है और ये मॉलिक्यूल्स विच आर एड्जॉर्ब्ड, सिंस दे आर अटैच विद द सिंपल अट्रैक्शन यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत ही लाइट होता है। तो हल्का सा भी इसको हीट करते हैं तो ये जो गैसेस एड्जॉर्ब हो रही हैं सरफेस के ऊपर, ये रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ये लो टेम्परेचर पर फेवर करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर डिसऑर्प्शन स्टार्ट होता है। तो दैट इज वाई इट इज रिटन इट इज यूजुअली टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन जो केमिकल बॉन्ड है समटाइम द हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, तो इसमें लिखेंगे इट टेक्स प्लेस एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट, it is not very specific, that is all gases are adsorbed on all solids at some extent। ये जो physical adsorption होता है that is not highly specific, any type of gas can be adsorbed on any type of surface, so that is why it is said that physical adsorption is not very specific। लेकिन जो केमिजॉर्प्शन है ये हाईली स्पेसिफिक होता है। क्यों हाईली स्पेसिफिक होता है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स एवरीवेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है बॉन्ड बनने की वहीं पर केमिकल बॉन्ड बनेगा। इसलिए किसी भी तरीके का सब्सटेंस को किसी भी तरीके के दूसरे सब्सटेंस पर एड्जॉर्ब नहीं करा सकता है। ओनली सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेज दे कैन बी एड्जॉर्ब ऑन द अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंसेज। तो इसलिए ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि बॉन्ड हर जगह पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है फिजिजॉर्प्शन, ये मल्टी मॉलिकुलर होता है। मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स में बी फॉर्म्ड ऑन द एड्जॉर्बेंट। व्हाट डज इट मीन? जैसे ये सरफेस है आपकी और इस सरफेस के ऊपर सिंस इट इज अ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो इसके ऊपर मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट लेयर इज फॉर्म्ड। अब ये जो अट्रैक्शन हो रहा है वो फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, तो कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो जैसे इसके ऊपर एक लेयर बनी, ज़रूरत पड़ी इफ इट इज़ नीडेड तो इसके ऊपर सेकेंड लेयर भी एड्जॉर्ब हो जाएगी। इफ इट इज़ स्टिल नीडेड तो इसके ऊपर थर्ड लेयर भी एड्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टी मॉलिकुलर होते हैं एंड सो मेनी लेयर्स दे कैन बी एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस। लेकिन जो केमिजॉर्प्शन है ये आपका यूनिमॉलिकुलर होता है। व्हाई इट इज़ यूनिमॉलिकुलर? देखिए, जैसे दिस इज द सब्सटेंस
और इस पर जो है कोई गैस दैट इज एड्जॉर्ब ये, एंड दिस गैस इट इज एड्जॉर्ब ऑन अ सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड। तो जैसे हमने बताया कि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक। तो हाईली स्पेसिफिक मीन्स ये गैस इस सब्सटेंस के साथ बॉन्ड बना रही है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये गैस जो है फिर दूसरी गैस के साथ भी बॉन्ड बनाए। अगर इसके ऊपर एक गैस और बना लेते हैं, मान लीजिए ये, तो ये गैस और ये गैस आपस में बॉन्ड बनाए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि इस गैस ने इस सरफेस के साथ तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये गैस इस सरफेस के साथ बॉन्ड बनाए ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए ये यूनिमॉलिकुलर होते हैं और जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो मल्टीमॉलिकुलर होता है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे we are going to study the next topic of the chapter surface chemistry, and that is adsorption isotherm. In this topic we will study the relationship between the pressure and the amount of the one substance adsorbed on the another substance. So for example, this is one substance, this is one substance at which some molecules of the other substance are to be adsorbed, and these are mainly the gaseous molecules. So side, these are the gaseous molecules which are needed to be adsorbed on this surface. So this is one substance, and at which these are the gaseous molecules which are needed to be adsorbed. So what we are going to study in this, this substance is now enclosed in a vessel, and here we adjust a piston, and as I told you, here gaseous molecules are there. If I ask you, when you will pressurize this piston downside, what will happen about the adsorption? The process of adsorption will increase, decrease or remain same. हमको ये पढ़ना है कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनको इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कराना है और ऊपर से इसको प्रेशराइज करना है पिस्टन को। तो जब हम प्रेशर को प्रेशराइज करेंगे तो आप अपने हिसाब से सोचिए, यू थिंक योरसेल्फ ओनली, कि जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन है उसका क्या होना चाहिए। सो इफ यू हैव ए लिटिल आइडिया देन यू कैन गिव द आंसर दैट व्हेन वी प्रेशराइज दिस वेसल और व्हेन वी प्रेशराइज दिस पिस्टन, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनको सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना है, ऊपर से हम उसको प्रेशराइज करेंगे तो जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन है डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज। अब यहां पे जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसको हम लेंगे x, और जो नीचे सब्सटेंस है इसकी जो सरफेस है उसको लेंगे m, और इसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड x अपॉन m। तो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन x अपॉन m एंड प्रेशर। What is the x here? That is the amount of the gas which is adsorbed, और ये होता है हमारा मेनली adsorbate at the given surface of adsorbent, और उसको हम लोग कहते हैं m। जो गैस एडजॉर्ब हुई है वो x हो गई, जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो गई उसकी जो वो है आपका m, और इसका जो रेशियो है x अपॉन m दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द प्रेशर,
द रेशियो ऑफ द एक्स अपॉन एम दैट इंक्रीजेस। और ये जो प्रोसेस है वो हम लोग करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, इसीलिए इसको नाम देते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर। सो सी द हेडिंग adsorption isotherm and the definition: the graph between the amount x upon m adsorbed by an adsorbent। तो ये आपका क्या हो गया, adsorbent, और जो चीज adsorb हो रही है उसको नाम देते हैं adsorbate, और that is called adsorption isotherm। iso means same, therm means temperature at the constant temperature, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट देना हमारी कंपल्शन है। अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपकी सरफेस है और इसके ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब करा रहे हैं, ये आपका पिस्टन है और इसको हम प्रेशराइज कर रहे हैं, तो हमें स्टडी करना है कि कितना प्रेशर हम लगाएं तो कितना एड्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम क्या करें, नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दें, तो हमको रीडिंग जो है वो करेक्ट नहीं मिलेगी। एक तरफ हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको नीचे से हीट कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन बढ़ जाएगा एंड वी विल नॉट गेट द करेक्ट वैल्यूज। तो ऐसे में हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर को स्टडी करना है कि कितना प्रेशर लगाने पर कितनी गैस एड्जॉर्ब होगी एट द गिवन सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये ग्राफ है, दैट इज एक्स अपॉन एम वर्सेस प्रेशर, और इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। इन द स्टार्टिंग इट इंक्रीजेस, और उसके बाद में आगे चल के धीरे धीरे ये इस लाइन के पैरेलल में आ जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम प्रेशराइज करेंगे किसी भी गैस को, तो शुरू में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो अमाउंट ऑफ द गैस है विच इज एड्जॉर्ब्ड वो इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। सो एज वी इंक्रीज कंटिन्यूसली प्रेशर, तो एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन द एड्जॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर आप प्रेशराइज उसको करते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि जो प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो हमेशा इंक्रीज करेगी। तो इन द स्टार्टिंग इट इंक्रीजेस, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसके पैरेलल में आता है और जो एड्जॉर्प्शन होता है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर। इसको अच्छे से स्टडी किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था फ्रिंडलिक। हिज नेम इज फ्रिंडलिक, और इसको नाम देते हैं फ्रिंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखिए व्हाट इज रिटन, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फ्रिंडलिक गेव ए रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब एक्स, जो गैस को आप एड्जॉर्ब कर रहे हैं वो एक्स है, पर यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट एम, एंड द प्रेशर, दिस इज नोन एज फ्रिंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन, क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट, ग्राफ को अगर हम देखें तो ग्राफ इस तरीके से आता है, इधर होगा आपका x अपॉन एम और इधर होता है आपका प्रेशर। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि x अपॉन एम और प्रेशर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा x अपॉन एम की वैल्यू इंक्रीज करेगी, प्रेशर बढ़ेगा x अपॉन एम की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो x अपॉन एम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बट आई टोल्ड यू, जब हम लगातार प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो प्रेशर है, जो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है। बाद में ये लाइन जो है बिल्कुल इसके पैरेलल में आ जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, हाई प्रेशर के ऊपर, यहाँ है हाई प्रेशर और यहाँ है लो प्रेशर पर, तो लो प्रेशर पर x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, लेकिन जब हाई प्रेशर होगा तो x अपॉन एम की वैल्यू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर p की पावर 0, और p की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे में जो x अपॉन एम है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगी, इट मीन्स इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर। तो लोअर रेंज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, हायर रेंज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p0, यानी कि p की पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। और इसके बीच की जो इंटरमीडिएट रेंज है वो क्या आएगी, वो देखिए, एक बार फिर से बता दूं, लोअर रेंज पर x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एट हाई प्रेशर पर x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। और जो इंटरमीडिएट रेंज है वो क्या होगी, वो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की, और इसमें होगा x अपॉन एम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n।
तो जो इंटरमीडिएट रेंज है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में, उसको कंबाइंडली हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर। जो इंटरमीडिएट रेंज होती है एट इंटरमीडिएट प्रेशर, रेंज x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए फ्रैक्शनल पावर ऑफ द प्रेशर। इंटरमीडिएट रेंज में ये जो x अपॉन m है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 अपॉन n। तो यहाँ पर हमको तीन चीजें स्टडी करना है, लोअर प्रेशर, हाई प्रेशर एंड इंटरमीडिएट प्रेशर। Whenever we remove the directly proportional, always we put a constant। तो यहाँ पर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे देन वी पुट ए कांस्टेंट x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n, जहाँ पर x जो है मास ऑफ द एड्सॉर्बेट यानी कि जो गैस एड्सॉर्ब करी है, m जो है वो मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whenever we want to prove the validity of any expression as I have explained you in the chapter chemical kinetics, तो हम उसको क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और y इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे। तो देखिए ये जो x अपॉन m है इसको हम लोग बनाएंगे log x अपॉन m और ये हमारा बन गया y। इसके बाद जो k है इसको हम लोग बनाएंगे log k, दोनों साइड पे log लेंगे, ये आपका log k बन गया। और ये p की पावर 1 अपॉन n है अकॉर्डिंग टू log रूल, ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन n और जो p है वो हमारा आ गया log p। एंड ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू दिस लीनियर इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c। अब हमें जैसा आपको पता है कि हम लोग जो है दो चीज़ों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंड यहाँ पर जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे वो करेंगे x अपॉन m वर्सेस प्रेशर। हम लोग जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो ग्राफ प्लॉट करेंगे x अपॉन m वर्सेस प्रेशर के बीच में, और साथ ही साथ व्हेन वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द लॉग, तो ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x और ये हो गया c, y m x c। तो अकॉर्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन दिस y और x। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दो के बीच, दैट इज log x अपॉन m और log p के बीच में। देखिए ये जो पहला वाला ग्राफ है ये है x अपॉन m वर्सेस प्रेशर के बीच में। तो शुरू में प्रेशर कम होता है, तो लो प्रेशर रेंज पर जो x अपॉन m की वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर के ऊपर जो x अपॉन m की वैल्यू है वो प्रेशर की पावर 0, इट मीन्स इक्वल टू 1, और जो इंटरमीडिएट रेंज है दैट इज x अपॉन m इक्वल टू k p रेज टू पावर 1 अपॉन n। ये तो सिंपल ग्राफ हो गया, लेकिन ये जो y इक्वल टू mx प्लस c है इसके अकॉर्डिंग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हो गया log x अपॉन m और ये हो गया हमारा log p। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया y और ये हो गया हमारा x, और ये जो c है वो इंटरसेप्ट कहलाता है, और c इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा log के, जो ये आपका दिया हुआ है log के दैट इज c, और ये जो m होता है वो आपको पता होगा दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद आता है इसका लिमिटेशंस ऑफ फ्लूइडिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो है फ्लूइडिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म शो सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। जैसे अभी हमने आपको बताया हाई प्रेशर के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हाई प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन किस तरीके से एक्सप्लेन किया सकता है दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड वेल बाय फ्लूइडिक। तो दिस यू कैन रिमेंबर, फ्लूइडिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म shows saturation at high pressure, therefore it is failed to explain at high pressure. Thank you.